Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. We are going to start Unit 4, which is Sociology of Paper 2nd Part B. See, sociology is fantastic subject, and for us sociology is important as well, because if we study sociology in depth, then definitely we will get maximum marks out of 30 marks, right? See, this unit is having 30 marks, and if we study in depth, then definitely we will get maximum marks. Second thing is that sociology is the science of society, and if we study sociology, then definitely you would have command over social issues, right? And various social issues are asked in essay or in your other GS paper, right? So if you are going to write any essay or any answer which is based on social issues, then definitely you can write a beautiful answer. And third thing is that we are living, right? We are living in a society, therefore it is much required for us to understand our society. Therefore this subject, sociology, is most important for us to understand and to study. See, many topics are included in society, but we will focus those which are included in our syllabus. So at first we will discuss and we will analyze the syllabus so that we could understand which topics needs to be studied properly. So first is social harmony. See, for the development or progress of a nation, social harmony is much required, because if there is an absence of social harmony, then there would be many social problems in that particular nation. Therefore social harmony is much required, and we will understand what is social harmony and also the elements of social harmony. Next topic is culture. So what is culture, importance of culture and concepts of culture, and what is civilization, importance of civilization and concepts of civilization, and we will also study the difference between civilization and culture. The third is features of Indian culture. Say, Indian culture is very unique in the world, so we will study the Indian culture and features of Indian cultures, right? Fourth is rituals, right? Or we can say that sanskar. See, so sanskars or rituals we will study, and various references regarding sanskar we will study. So जो 16 संस्कार, there are 16 संस्कार, उनके बारे में हम जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. Next topic is caste system. See, there is a difference here. If you will study the Hindi medium syllabus, then you will find a topic which is Varna system. So Varna system is mentioned in Hindi medium syllabus, whereas in English medium syllabus it is mentioned as caste system. So there is a difference between Varna system and caste system, right? And we will study both the topic caste system and Varna system as well. So at first we would focus Varna system, and then we would focus the caste system as well. Next topic is ashram system. So we would study 4 ashrams, right? Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, then Banprastha ashram and Sannyas ashram, and Purusharthas, right? Purusharth Chatushta, Dharma, Arth, Kam and Moksha. So these are the 4th Purusharthas: Dharma, Arth, Kam and Moksha. What are the importance of ashram system? What is the importance of Purushartha system, right? Why are they important for human life, right? So we will study in very detail ashram system as well as Purushartha Chatushta system. Then religion. At first we would come to know what is religion and what is sect, right? And we will study different type of religion and sects, and also influences of religion and sects
on a society. Next is methods of a marriage. See, if we talk about Indian culture, then there is a much importance of marriage system in Indian culture. But if we talk about the foreign culture or European culture, so in European culture marriage system, right, marriage is a social context, but हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें मैरिज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है. सो व्हाट इज मैरिज एंड वी विल स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैरिज. नेक्स्ट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी many programs were run by the government, right. So we will study community development program in depth. After that, extension education. See, extension education is also important for the welfare of the society. So we will study what is extension education and why is this extension education important. Then Panchayati Raj. After that, role of NGOs, non-government organizations. So role of NGOs in community development. Next is recent trends in voluntary sector regarding rural development. So जो voluntary sector में recent trends हैं regarding rural development we will study. और finally we will study the family court. So this was the syllabus of unit 4, right. So you will find here that there are various types of topics here, right. और इनमें से कुछ टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही क्या है, अलग है, right. तो हम यहाँ पर इस क्रम में जो है इन टॉपिक्स को जो है पढ़ते चले जाएंगे, right. So let's understand sociology. See, sociology is the science of society. See, sociology is the science of society in which social relations, right, social relations, social interactions and social groups are studied, right. So sociology is the science of society in which social relations, social interactions and social groups are studied. Also we can say that sociology is the study of social groups or society. तो सोसाइटी का या सोशल ग्रुप्स की स्टडी ही क्या कहलाती है, सोशोलॉजी कहलाती है. Therefore, at first we will understand कि सोशल ग्रुप क्या होते हैं, सोसाइटी क्या होती है, और we have to prepare these topics for 3 marker question or 5 marker question, because various 3 marker question or 5 marker question can be asked. For an example, right, what is social group, right, or 5 marker question can be asked what are the characteristics of a society or what are the characteristics of social group, right, what is community, right, and what is society, right. So these type of question can be asked in the examination. So at first we study about social group, community, society, then we will discuss the sociology and we will see the definitions of sociology, right. So at first we would understand social group. See, social groups refers to those continuously interacting individuals, right. So those continuously interacting individuals who share common interest, right, common culture, common values or common standard in a society, right. So continuously interacting individuals, right, who share common interest, right, उनके इंटरेस्ट समान हो, राइट, कॉमन कल्चर हो, कॉमन वैल्यूज हो और कॉमन स्टैंडर्ड हो, उन कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स को ही सोशल ग्रुप कहा जाता है. सी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन ऑलवेज इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग. यदि किसी ह्यूमन बीइंग को हम किसी टापू पर, राइट, किसी फॉरेस्ट एरिया में या किसी को जेल में डाल दें तो डेफिनेटली आफ्टर 3, 4 और 5 days ही विल गेट बोर.
वह बोर हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन का कैरेक्टर है, वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता है, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करता है और अपने थॉट्स को, राइट, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसीलिए जो ह्यूमन है, राइट, इसीलिए ह्यूमन जो है वो सोशल ग्रुपिंग करता है। सो वी कैन से दैट द one of the characteristics of human is that human beings interact, communicate and form social grouping। और जो सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, राइट, या एंशिएंट सोसाइटी हो, हर एक सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं, राइट। तो जो ह्यूमन ग्रुप्स है या ह्यूमन ग्रुपिंग्स है, ये फीचर मॉडर्न सोसाइटी हो या एंशिएंट सोसाइटी हो, एशियन सोसाइटी हो या अफ्रीकन सोसाइटी हो, एवरी सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ जो ह्यूमन ग्रुप्स होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, राइट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड there are different types of human groupings in different societies, right? So we will see here which characteristics should have a social group, right? So social group के पास में कौन कौन से characteristics होते हैं, we will see. So social group should have at least the following characteristics. First यहाँ पर ये हो जाएगा long lasting interactions for continuity, right? तो यदि लॉन्ग लास्टिंग इंटरेक्शंस होंगे तभी उन लोगों या इंडिविजुअल्स को ही क्या माना जाएगा, सोशल ग्रुप माना जाएगा। साथ ही साथ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, राइट, जो इंटरेक्शंस हैं वो किसी एक स्टेबल पैटर्न पर होनी चाहिए, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कॉमन आइडेंटिटी विद अदर मेंबर, दैट इज ईच इंडिविजुअल being conscious of the group and its rules, rituals and symbols। तो ग्रुप में जो भी मेंबर होगा वो अपने ग्रुप के रूल्स को, रिचुअल्स को या सिंबल को, राइट, जो है असिमिलेट करता है और उन पर क्या करता है, उस कॉमन आइडेंटिटी को भी या उस कॉमन आइडेंटिटी को भी एक्वायर करता है। तो पहली चीज क्या होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग इंटरेक्शंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंटरेक्शंस हैं वो स्टेबल पैटर्न पर होना चाहिए। और तीसरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर 8 से 10 इंडिविजुअल हैं या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनके कॉमन इंटरेस्ट नहीं होंगे सो डेफिनेटली वो जो इंडिविजुअल है वो किसी दूसरे ग्रुप में क्या हो जाएगा, किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा और उस ग्रुप को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो हमेशा कॉमन इंटरेस्ट होगा तब तक वह उस ग्रुप का क्या होगा, मेंबर होगा। नेक्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड्स, और क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यूज हो जाएंगे। इफ देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट है और सबका यदि इंडिविजुअल्स का कॉमन इंटरेस्ट है सो डेफिनेटली वो कॉमन स्टैंडर्ड्स को और कॉमन वैल्यूज को क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। अब यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो if 3 marker question is asked what is social structure, then we can write here social structure refers to patterns of regular and repeated interactions between individuals or groups। So simply social structure refers to patterns of regular or repeated interactions between individual and society, right? So simply we can say that social groups refers to those continuously interacting individuals who share common interest, culture, values and standards in society, right? Okay, now we will see different types of groups, right? तो यहाँ से भी 5 जो है 5 marker question can be asked in the examination, right? State the different types of social groups in a particular society। तो सोसाइटी में जो जितने भी टाइप के सोशल ग्रुप्स हैं वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहली चीज तो ये है कि वेदर ट्रेडिशनल सोसाइटीज हो या मॉडर्न सोसाइटीज हो, उनमें डिफरेंट टाइप्स के सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं, बट उनमें कुछ कॉमन अंतर भी होते हैं, कॉमन डिफरेंसेस
if we talk about traditional societies, then definitely there is a close, intimate and face to face interaction in traditional societies. क्योंकि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उस समय पे टेक्निकल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था, इसीलिए इंडिविजुअल्स जो थे वो दूसरे इंडिविजुअल्स पर क्या थे, पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, राइट। फिर बार्टर सिस्टम चलता था, तो बिकॉज ऑफ द बार्टर सिस्टम जो था ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल्स वर डिपेंडेंट, राइट, एंड देयर वाज अ बार्टर सिस्टम। देयरफॉर अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्लोज और फेस टू फेस जो है इंटरेक्शंस होते थे। वही मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है, इम्पर्सनल, अनअटैच्ड और डिस्टेंस जो है इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोशल ग्रुप हो जाएगा एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप हो जाएगा। प्राइमरी सोशल जो ग्रुप है उसको किसे कहा जाता है वो समझते हैं। सो सी, प्राइमरी ग्रुप रिफर्स टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन। तो जो प्राइमरी सोशल ग्रुप होता है उसमें हमेशा उसमें इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड। तो चूंकि जो प्राइमरी सोशल ग्रुप होते हैं वो पर्सन ओरिएंटेड होते हैं और इसी वजह से प्राइमरी सोशल ग्रुप में क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं या फेस टू फेस क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। और प्राइमरी सोशल ग्रुप जो है वो स्मॉल होता है, क्लियर। और जो मेंबर ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं दे हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू क्या होता है, ईच अदर होता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, फैमिली, विलेज एंड ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। तो वहीं सेकेंड हो जाएगा सेकेंडरी सोशल ग्रुप, राइट, जहां पर प्राइमरी सोशल ग्रुप रिलेटिवली क्या होता है, स्मॉल होता है, तो वहीं सेकेंडरी सोशल ग्रुप रिलेटिवली क्या होता है, लार्जर इन साइज होता है। और सेकेंडरी सोशल ग्रुप में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं या इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। तो इसमें इंटरेक्शंस या रिलेशनशिप इम्पर्सनल होता है और साथ ही साथ फॉर्मल होता है। जैसे हमने देखा था कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी सोशल ग्रुप इज पर्सन ओरिएंटेड, बट जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप होता है इट इज गोल ओरिएंटेड। फॉर एन एग्जाम्पल एजुकेशन, तो इफ एजुकेशन इज गोल देन जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा या स्टूडेंट्स का जो सोशल ग्रुप होगा दैट इज स्कूल, राइट, वो क्या होगा, सेकेंडरी सोशल ग्रुप होगा। वैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो जाएंगे या हॉस्पिटल्स हो जाएंगे या स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, यूनियंस हो जाएंगे, क्लियर। ओके, नाउ वी विल स्टडी कम्युनिटी। सी, कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट। तो कम्युनिटी भी क्या होती है, एक सोशल यूनिट होती है, बट यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसीलिए इसकी जो है डेफिनेशन को आप जो है अच्छे से स्टडी करना, राइट। कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट, राइट, कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट विद कॉमनलिटी, राइट, कॉमनलिटी सच एज प्लेस, नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज, कस्टम और क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी इज द combination of many communities, right, और different types of individuals। बट अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी भी एक सोशल यूनिट होती है, परंतु इसमें कॉमनलिटी का जो फैक्टर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सोसाइटी में हो सकता है कि डिफरेंट इंटरेक्शंस वाले या डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस वाले जो हैं लोग भी जो है सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु कम्युनिटी में हमेशा वो लोग सम्मिलित होते हैं जो कि उस कॉमनलिटी से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सो कम्युनिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉमनलिटी बिटवीन और अमंग द मेंबर्स। सो अ कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट विद कॉमनलिटी सच एज प्लेस, नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज, कस्टम्स और क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा,
or in other we can say that community may share a sense of place situated in a given geographical place. जैसे हो सकता है कंट्री हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, टाउन हो जाएगा. तो किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को हम एक कम्युनिटी मान सकते हैं. तो यहाँ पर कम्युनिटी को समझने के लिए एक तो क्या हो जाएगा, कॉमनलिटी हो जाएगा, राइट. ऐसी सोशल यूनिट जिसमें कॉमनलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, राइट. कॉमनलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो धर्म का फैक्टर हो, राइट, रिलीजन फैक्टर हो, प्लेस फैक्टर हो, या वैल्यूज का फैक्टर हो. बट कम्युनिटी में हमेशा कॉमनलिटी का जो फैक्टर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, राइट. और कम्युनिटी में जो प्लेसेस है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेसेस में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको उस कम्युनिटी का माना जाता है. साथ ही साथ जो कम्युनिटी में जो रिलेशंस होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं. तो ड्यूरेबल रिलेशंस आल्सो डिफाइंस अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, राइट. और कम्युनिटी में जो आइडेंटिटी होती है, जो प्रैक्टिस होती हैं, जो रोल्स होते हैं, या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, फैमिली, होम, वर्क, गवर्नमेंट, सोसाइटी, और ह्यूमनिटी क्या हो जाएगा, एट लार्ज हो जाएगा, राइट. इसके साथ ही कम्युनिटी में आल्सो रेफर टू अ लार्ज ग्रुप एफिलिएशंस सच एज, जैसे अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की तो क्या हो जाएगा, नेशनल कम्युनिटीज हो जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर लार्ज ग्रुप की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज हो जाएगा या वर्चुअल कम्युनिटी हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी. See, a society is a group of individuals involved in a persistent social interaction. यही जो है दोनों की क्या है डिफरेंस है, और यही दोनों का क्या है अंतर है, राइट. जहां पर कम्युनिटी में कॉमनलिटी का जो फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो वहीं सोसाइटी में जो सोशल इंटरेक्शन है वो फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. तो सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, इन्वॉल्व्ड इन अ परसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरेक्शंस हो जाएगा. और वी कैन से दैट अ सोसाइटी इज अ लार्ज सोशल ग्रुप, राइट. सोसाइटी इज अ लार्ज सोशल ग्रुप शेयरिंग द सेम स्पाइशल और सोशल टेरिटरी, टिपिकली सब्जेक्ट टू सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड डोमिनेंट कल्चरल क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा. तो सोसाइटी में कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का इंपॉर्टेंस होता है, तो वहीं कम्युनिटी में किसी रिलीजन का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, किसी वैल्यूज का क्या होता है, इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इफ वी टॉक अबाउट सोसाइटी, सो सोसाइटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय द पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप. जैसे क्या हो जाएगा, सोशल रिलेशंस हो जाएगा बिटवीन इंडिविजुअल हु शेयर अ डिस्टिंक्टिव क्या हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा, या इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा. क्लियर. तो इस तरीके से जो है सोसाइटी में सोशल रिलेशंस, राइट, जो सोशल रिलेशंस होते हैं या सोशल इंटरेक्शंस करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, सोसाइटी में कहा जाता है. इसके साथ ही सोसाइटी में कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट, कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं. तो societies construct patterns of behavior by deeming certain actions as acceptable or unacceptable. तो कुछ certain pattern of जो behavior होते हैं उनको accepted किया जाता है और unaccepted किया जाता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, social norms कहा जाता है. और जो social norms है वो according to time and place जो है वो changes भी होते हैं, राइट. तो इस तरीके से हमने जो सोशल ग्रुप क्या होते हैं, तो सोशल ग्रुप को भी पढ़ लिया है, राइट, कम्युनिटी को भी पढ़ लिया है, और यहाँ पर हमने सोसाइटी को भी समझ लिया है, राइट. नाउ वी विल फोकस सोशियोलॉजी, राइट. सो वी हैव स्टडीड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेक्शंस, social relations and social groups are studied along with the study of society हो जाएगा. So this is the definition of sociology. See, sociology is the science of society, but sociology को एक subject के रूप में
जो है इंपॉर्टेंस दिलाने में अगस्ट कॉम्टी का क्या है इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट. सो द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग दिस एज अ न्यू साइंस गोज टू फेमस फ्रेंच स्कॉलर Auguste Comte. Therefore, Auguste Comte is known as father of sociology, right. और sociology में different type जो different ideology वाले socialist भी हैं, right. अगर हम देखें तो कॉम्टे हो जाएगा एंड कॉम्टे, दुर्खीम हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा, मार्क्स वेबर हो जाएगा, राइट. सो दीज सोशलिस्ट आर इम्पोर्टेंट एंड इन सोशलिस्ट ने जो है सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट का स्टेटस दिलाने में इम्पोर्टेंस रोल भी जो है प्ले किया है. नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी. सी सोशियोलॉजी, द sociology word is made up of two words. First is socius and second is logos. Here socius is a Latin word and logos is a Greek word. Socius का means होता है society और logos means study or science. Therefore, we can say that sociology is the science of society, right? So this is sociology word और इस sociology word में socius जो है ये लैटिन वर्ड है, राइट. लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और socius का मतलब होता है सोसाइटी. वहीं लोगस ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है साइंस या स्टडी. देयरफॉर वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, राइट. Now we will study definitions of sociology. See, many sociologists have played most important role to establish sociology as a subject. और वहीं कई सोशोलॉजिस्ट ने सोशोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. फॉर एन एग्जाम्पल, according to some sociologists, sociology is the study of group, social group, right. So according to some sociologists, sociology is the study of social relationship. So and according to some sociologists, sociology is the study of social interactions. And according to some sociologists, sociology is the study of, right, social groups. So we will study one by one. The first is sociology as the study of society. So according to some sociologists, sociology is the study of society. और इस तरीके से जो परिभाषित करने वाले प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं उनमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, गिडिंग्स हो जाएगा, सुमनेर हो जाएगा, वार्ड हो जाएगा, ऑडम हो जाएगा. एंड नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस वन बाय वन. अकॉर्डिंग टू वार्ड, सोशोलॉजी इज द स्टडी और साइंस ऑफ क्या हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू वर्ड, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट, गिडिंग. अकॉर्डिंग टू गिडिंग, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होलिस्टिक यूनिट. So this is related to Giddings. Then definition of Odum. Sociology is the science that studies society. Right? Now second, sociology as the study of social relations. तो सोशोलॉजी को सोशल रिलेशंस की स्टडी करने वाले जो प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं उनमें हो जाएंगे मैकाइवर एंड पेज, सेकेंड कुबेर, मैक्स वेबर, राइट. वैन वेज हो जाएगा, अर्नोल्ड एम रोज, एटीसी. सो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज. अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, सोशोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशंस, राइट, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप. So sociology is about social relations
or we can say that sociology is about network of relationships. Second, Kuber. According to Kuber, sociology can be defined as the branch of scientific knowledge of human relations. According to Van Wijk, social relations are the only basis of the subject matter of the sociology. Clear? And the third category is sociology as the study of social interactions. Right? So sociology as the study of social interactions, और ये जो आइडियोलॉजी है इसके प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट में हो जाएगा गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा, गिन्सबर्ग हो जाएगा, जॉर्ज सिमेल ईटीसी। अब इसमें सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर मैक्स वेबर। राइट? सो मैक्स वेबर जो है वो इस विचारधारा के सोशोलॉजिस्ट भी हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सोशोलॉजी इज द साइंस विच ट्राइज टू गिव एन एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। According to Gillen and Gillen, sociology is the study of interactions that arises as a result of interactions of individuals with each other. Clear? And according to Ginsberg, sociology is the study of human interactions and their conditions and consequences. Right? And fourth is sociology as the study of social group. राइट? सो सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। और इस आइडियोलॉजी के जो प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं उसमें नॉफ्स हो जाएगा, राइट, हीन हो जाएगा, फ्लेमिंग हो जाएगा और जॉनसन हो जाएगा। अब जॉनसन की डेफिनेशन को हम यहाँ पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू जॉनसन, सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। Right? So in this way sociology can be defined. Right? Now the most important which can be asked as a 5-marker question in the mains examination, importance of sociology. Right? So we will study importance of sociology. See, यदि हम sociology को डेप्थ में पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, impart scientific knowledge about the entire human society. Right? So जो scientific knowledge है सोसाइटी का, we impart the scientific knowledge about the entire human society. और इस वजह से ह्यूमन सोसाइटी को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, सोशल इश्यूज को समझने में, सोशल प्रॉब्लम्स को समझने में हमें हेल्प होती है। इसके साथ ही जो जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल चैलेंजेस होते हैं, उनको भी ओवरकम किया जा सकता है या उनको भी कम किया जा सकता है। द फर्स्ट इज इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द इंटायर ह्यूमन सोसाइटी। सेकेंड थिंग इज दैट यदि हम सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, राइट, और सोसाइटी को हम साइंटिफिक तरीके से समझते हैं तो वी विल गेट कि सोसाइटी अकॉर्डिंग टू टाइम जो है, प्लेसेस जो है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। राइट? तो जैसा समय होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, राइट, ज्योग्राफी, उसके अकॉर्डिंग जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं। और यदि हम साइंटिफिक तरीके से इस बात को पढ़ते हैं और पूरी सोसाइटी इसको समझती है तो हम जो न्यू सोशल नॉर्म्स हैं उनको आसानी से क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, और इफ़ वी हैव रैशनल थिंकिंग, राइट, हमारे पास में साइंटिफिक स्टडी है, रैशनल थिंकिंग है, देन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू टाइम जो न्यू सोशल नॉर्म्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द स्प्रिट ऑफ को एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। राइट? यदि को एग्जिस्टेंस की जो स्प्रिट है ये इवॉल्व होती है तो वह देश के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर को एग्जिस्टेंस की जो स्प्रिट है वो कम होगी तो कई सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सोसाइटी में उजागर होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कास्ट सिस्टम हो जाएगा या फिर रीजनलिज्म हो जाएगा, राइट, रीजनलिज्म हो जाएगा या सीसेशनिस्ट टेंडेंसीज हो जाएंगी। राइट? इस तरीके की जो कई समस्याएं हैं वो फिर उभर कर सामने आएंगी। फिर सोशोलॉजी इज आल्सो हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ट्रेडिशंस।
हमारी सोसाइटी में जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो ट्रेडिशंस जो हैं क्यों स्टार्ट किए गए थे, इनको हम साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं। एंड इफ़ अगर हमें समय के अनुसार उनमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली वी कैन अडॉप्ट न्यू सोशल नॉर्म्स एंड न्यू सोशल ट्रेडिशंस। नेक्स्ट इज sociology is helpful in national integration। क्लियर? अगर सोशियोलॉजी के स्टडी से हम समझ पाते हैं कि जो ह्यूमन इंट्रैक्शंस हैं, राइट, ह्यूमन इंट्रैक्शंस हैं या ह्यूमन रिलेशंस हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो स्पिरिट ऑफ कोएग्जिस्टेंस है वो इवॉल्व होगी और उसके साथ ही एक नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा। अगर एक ही सोसाइटी होगी और सभी इंडिविजुअल उस सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, सो डेफिनेटली उससे नेशनल इंटीग्रेशन या रीजनल जो इंटीग्रेशन है वो इवॉल्व होगा। साथ ही साथ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। इफ वी हैव साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी एंड इफ वी हैव रैशनल थिंकिंग, देन जो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको इरेडिकेट किया जा सकता है और उनका जो है सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स को वाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो हैं उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा स्थिति में चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं सोशल रिलेशनशिप्स या सोशल इंट्रैक्शंस पर बेस्ड होती हैं। अगर आप कोई भी रूल बनाएंगे और कोई भी रेगुलेशंस बनाएंगे तो वो किसी दूसरे फॉर्म में क्या होगी, सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाउरी सिस्टम हो जाएगा, राइट। अब आपने अगर एक रूल बना दिया, राइट, कि हुएवर अगर कोई भी व्यक्ति डाउरी मांगेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। बट अगर हम देखेंगे तो जो डाउरी देना है वो एक क्या है, सोशल, यहाँ पर सोशल इंट्रैक्शन हो जाएगा या सोशल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो हो सकता है कि शादी के समय कोई भी व्यक्ति जो है डाउरी ना मांगे, परंतु हो सकता है शादी के बाद में वाइफ को प्रेशराइज करे या फिर जो दोनों फैमिलीज हैं वो एक तरीके से किसी दूसरे माध्यम से एक दूसरे को प्रेशर करें। तो कहीं ना कहीं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको तभी सॉल्व किया जा सकता है जब हमें पता हो कि उसके पीछे तरीका क्या है। और यदि हम सोसाइटी को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, सोसाइटी को अवेयर करेंगे तो जो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से ओवरकम की जा सकती हैं, राइट। तो सोशल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, उनके इराडिकेशन के लिए हमारे पास में रैशनल थिंकिंग होना चाहिए और हमारे पास में सोसाइटी का जो है साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो सोसाइटी की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। देन रूरल क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जो रूरल सोसाइटीज़ हैं, रूरल सोसाइटीज़ की नीड अलग होती है, उनके सोशल इंट्रैक्शंस अलग होते हैं, एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं, उनका कल्चर अलग होता है। अगर हम सोसाइटी के बारे में हमारे पास में मच नॉलेज होगा, अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, सो डेफिनेटली जो रूरल इकोनॉमी है या रूरल सोसाइटी को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अर्बन डेवलपमेंट भी जो है किया जा सकता है। सोशोलॉजी इज आल्सो हेल्पफुल इन द एराडिकेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉब्लम्स एंड ट्राइबल क्या हो जाएगा, वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है, अगर हम ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए कोई भी पॉलिसी या स्कीम्स जो है लॉन्च कर रहे हैं, परंतु इफ़ वी डोंट नो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ट्राइबल्स, दैन डेफिनेटली हम ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। हो सकता है ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट या कोई भी एक ट्री वो उनके लिए बहुत ही पवित्र हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जो जितने भी ट्राइबल्स के जो इंट्रैक्शंस हैं या ट्राइबल्स के रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे वो एक दूसरे पर कम्युनिकेट करते हैं, अगर उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होगी तो जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी और ट्राइबल का वेलफेयर भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज जो सोशल प्लानिंग है उसमें भी वी विल गेट सोशल असिस्टेंट,
राइट। तो जितनी भी सोशल प्लानिंग है, अगर हम सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो सोसाइटी का जो साइंटिफिक नॉलेज है ये हमको हेल्प करता है, राइट। हेल्पफुल इन मेकिंग फैमिली लाइफ जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फैमिली लाइफ है वो सक्सेसफुल तभी हो पाएगी तब हम सोसाइटी को समझें कि किस तरीके से हमको जो है सोशल रिलेशंस रखना है या सोशल इंटरेक्शन करना है। आल्सो सोशलॉजी हैज कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ लार्ज सोसाइटी ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस की जो लार्ज सोसाइटी है वही क्या है, हमारी डेमोक्रेसी है। और अगर हम हमारी जो है सभी इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, राइट, उनके सोशल इश्यूज़ को समझते हैं, तो डेफिनेटली हम उन जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम कर पाएंगे और इससे डेमोक्रेसी भी क्या होगी, सक्सेसफुल रहेगी और डेमोक्रेसी डे बाई डे क्या होगी, इम्प्रूव भी होगी। आल्सो प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलॉजी हो जाएगा। तो जो सोशलॉजी के जैसे सोशल रिलेशंस होते हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसका डायरेक्ट जो है अफेक्ट पड़ता है प्रोफेशन पर या फिर जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उस पर, right? So this was the importance of sociology. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.